Okay, Tim. You can see my screen, right? Yes, Okay. So, Tim, up till now, we have gone through the SAP PP organization structure where we talk about what is the plant, company code, storage location. Okay. Then we have started the next topic, that is SAP PP master data, in which first chapter we talk about material master. What are the different material master? What are the different views important from PP perspective? We have created semi-finish, finish, and raw material also, for example. Then in the next master data chapter, we understand what is the bill of material. We created a BOM for the finished good and semi-finished good, okay, and different types of BOM over there. Then next topic we understood, that is factory calendar, which was just a complementary or additional topic for the work center. In work center chapter, we understand what is a machine, how to machine is considered, or how what is a work center, how to create that. Okay. Now next topic was the routing, where we understand how this work center are integrated into the routing. Okay. So all these things we understood as a part of SAP PP master data. Okay. Factory calendar is not a master data, but it is important. So we've gone through that topic. Okay. So material master, bill of material, work center, routing are the main SAP PP master data in discrete manufacturing. Okay. In ECC. Now, whatever we are learning, that is ECC or ERP software, okay, which is old one. Nowadays we are using S4 HANA, okay, in all the industry. Mostly people are going to migrate to S4 HANA. In that S4 HANA, we are having production version is one of the important master data. Okay, so now currently in ECC, production version is not considered the important or mandatory master data for discrete manufacturing. If you go for repetitive manufacturing, okay, and if you go for process industry, only those two industry where the production version is mandatory. But in ECC, sorry, but in S4 HANA, we have production version also as the mandatory master data. So consider production version is one of the important master data, and we are going to learn today what is the production version. Okay, I hope everybody is clear up till now. yes. Let us understand what is a production version. The production version is the link between the production BOM and the routing, which determines alternate BOM is used together to which routing to produce a material or a plant in a material. Okay, or a plan in a material. Okay, so it's a combination of BOM and routing, first of all. So let us have some example. Okay, let me open one Excel sheet for you. मैंने सेव नहीं किया था, जो ठीक है. So do you remember, guys, we have created three routing: classical. When we talk about multiple routing, classical, then semi-automatic, semi-automatic, and then finally we are having uh, fully automatic, right? So we call this as the R1, this as the R2, this as the R3. Okay, where we talk about the range is from starting from somewhere 0 to 22,000. I hope you recall this example. Yes. Okay, thank you. And this was somewhere from 22,000 onwards till 55,000.
Okay, and the third routing was having capacity 55,000 till 1,10,000. Okay. Gotcha. Okay. Clear. So this is my routing R1, R2, R3, which we are using. We are saying we are managing fridge. Okay. The product was fridge, right? Fridge. So we are having this three routing, which is the different options available. Parallelly, we learn in the topic of bomb. There are three different bombs. So routing multiple bombs. We can say alternate bomb, bomb one. Then we have bomb two. Okay. Alternate bomb one, alternate bomb two. Okay. So these are the different use. So let me do login and show you on system what are the bomb one and bomb two here. Okay. So let us understand the concept of production version from bomb and routing perspective. So these all are routing. Okay, freeze routing. This is alternate bomb for freeze. Okay, the alternate bomb for freeze. Sure. Now let us to log into system. Log on. So yeah, आपको we have created alternate bombs. Okay, so for refrigerator we have bomb one and bomb two. If you go to bomb one, we are having these components. Okay, and if I go to bomb two, so these are the components. So ये दो alternate bomb है, ठीक है? Then parallelly we have created routing, right? CA03 routing is CA03 display. Okay, make it 4 and operations. So we can see for this group there are two routing one, routing two. If you go to this routing, so we have refrigerator. These are the operations for routing one, and these are the operations for my bad. This is routing one. This is routing two, where we are having only these three operations. Okay, recollect टीम यहाँ तक क्लियर सबको? दो या चीज याद आ गई, हमने दो बॉम्ब के राउटिंग बने, तो हमारे पास क्या है? दोनों राउटिंग एंड दोनों बॉम्ब है. सो वी आर हैविंग बॉम्ब एंड वी आर हैविंग राउटिंग. तो बॉम्ब के कौन कौन से लेवल है हमारे पास? बॉम्ब वन है, ठीक है, उसको B1 बोलेंगे. एंड अल्टरनेट बॉम्ब टू है तो उसको B2 बोलेंगे. यहाँ पे राउटिंग है उसको R1 बोलेंगे. अगेन वन राउटिंग उसको R2 बोलेंगे. ठीक है. सो बॉम्ब एंड राउटिंग ये है. सो प्रोडक्शन वर्जन जो है, व्हाट वी आर सेइंग, प्रोडक्शन वर्जन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, it's a combination or link between the product bomb and the routing, or we can say it's a simply combination of bomb and routing. तो एक bomb और एक routing का combination बनेगा. तो अगर हमने यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे combination होता है B1 and R1. ठीक है, मेरा अल्टरनेट बॉम्ब वन और अल्टरनेट राउटिंग, मेरा राउटिंग वन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के मैं इसको क्या बोलूंगा? आई विल से दिस इज माई PV1 प्रोडक्शन वर्जन वन. ठीक है, समझ में आ रहा है आपको यहाँ तक? टीम आर बी क्लियर? सब Yes. वैजनाथ, राजेश, राकेश, ऋषि, Yes. सिंपल है. Yes. बॉम्ब वन और R1. Yeah. फिर ये बॉम्ब वन और मेरा R2, ये भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है. ओके, बॉम्ब वन इंटू R2, दिस विल बी माई सेकंड कॉम्बिनेशन, and I will give name them as a production version 2. Okay, now what more combination we can have? We can have B2 into B2 and R1, right? It will be called as a PV3 production version 3, and last combination will be B2 and R2.
PV04। समझ में आ रहा है आपको? Yes. तो इसका मतलब क्या हो गया कि टू मैन्युफैक्चर वन प्रोडक्ट वी आर हैविंग टू अल्टरनेट बॉम्ब and also we are having two alternate routing also. So we can make their combination and use them for a production. ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, सिंपल, एक सिंपल वापस आपको और एक एग्जांपल देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। हमने चाय का एग्जांपल लिया था। टू मैन्युफैक्चर टी वी आर हैविंग टू राउटिंग, लाइक वी आर हैविंग शुगर, ओके, वी आर हैविंग मिल्क, ओके, देन टी पाउडर, okay, and last was we are having what was the last option, water, right? These are the main ingredients. तो ये मेरा टी का बॉम्ब वन है, ठीक है। अभी मेरा टी बनाने का बॉम्ब टू क्या था? कैन somebody tell me what we have done alternate bomb? तो मैं यहाँ बोलूंगा मिल्क की जगह पे मेरे पास मिल्क पाउडर है। मिल्क की जगह मिल्क पाउडर है, ओके, क्लियर है टीम? तो ये मेरा बॉम्ब टू हो गया, अल्टरनेट बॉम्ब टू। अभी टी बनाने के लिए हमारे पास, अगर हमारा राउटिंग है तो राउटिंग भी हमारे पास वर्क सेंटर है। मान लो कि मेरे पास एक वर्क सेंटर दैट इज अ गैस, ठीक है, इसको बोलूंगा मैं राउटिंग वन, जो मैं गैस के ऊपर मेरा चाय बना सकता हूँ। और आई एम हैविंग सेकंड R2 इज माई इलेक्ट्रिकल केटल, या फिर मैं बोल सकता हूँ मेरे पास इलेक्ट्रिकल स्टोव है, वो आता है ना, पैन बोलते हैं इसको कुछ तो, आई डोंट नो, ठीक है। तो मेरे पास दो राउटिंग है, एक राउटिंग है जिसमें मैं गैस यूज करूंगा, दूसरा राउटिंग है उसमें मेरा वर्क सेंटर जो है, ऑपरेशन क्या है, टी मैन्युफैक्चरिंग और टी बॉयल द टी, ये ऑपरेशन है। उसके लिए मैं गैस का एक वर्क सेंटर यूज कर सकता हूँ, या फिर मेरे पास इलेक्ट्रिकल स्टोव है। समझ में आ रहा है आपको अभी कॉम्बिनेशन? हेलो, Yes. Yes. यहाँ तक क्लियर सब लोग? एवरीबडी इज क्लियर? Yes. आई एम गिविंग वेरी generic and simple example so that you can visualize and understand what exactly I want to give you example over here, okay? चलो, तो अभी क्या करते हैं, अभी मुझे बताओ, ये तो मेरे पास है अल्टरनेट, ये तो सब ठीक है, लेकिन इसका यूज क्या है? ये सब क्यों कर रहे हैं हम लोग? अल्टीमेट पर्पज क्या है? See, देखो, whatever routing and everything we learn, first thing I emphasis to help you to understand what is the application of this particular master data. bomb क्यों चाहिए? bomb is a structural for the list of the component along with quantity and यूनिट ऑफ मेजर, ये मैंने एम्फोसाइज करके बताया। फिर उसका एप्लीकेशन बताया, ठीक है, राउटिंग का बताया, वर्क सेंटर का एप्लीकेशन बताया, ठीक है। तो फाइनली ये जो हम चीज बॉम्ब प्रोडक्शन वर्जन ये सब कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या बन रहा है? देखो, चाय बनानी है तो आप ये सब यूज करके भी चाय बना सकते हो, मतलब बॉम्ब वन से भी चाय बन रही है आपकी, और आपने गैस के ऊपर डाल दिया तो भी बन सकता है, ठीक है। तो हमने क्या करते हैं, इसको लिखते हैं हमारा टी बनाने का जो प्रोडक्शन वर्जन है। मान लो कि ये हमारा प्रोडक्शन वर्जन टी बनाने का भी, ठीक है, ठीक है, PV1, PV2, PV3, PV4। अभी देखो, मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं गैस के ऊपर चाय बनाता हूँ, ठीक है, तो मुझे पर कप, ठीक है, पर कप मुझे पड़ता है 5 रुपए, 5 रुपीज पर कप, ठीक है। एंड इफ आई यूज इट ऑन इलेक्ट्रिकल स्टोव इट विल कॉस्ट मी 3 रुपीज पर कप। हो सकता है कि नहीं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes. 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 ठीक है, तो हम इसको नंबर देते हैं, इसको बोलते हैं 5, इसको बोलते हैं 3, ये रुपीज है अपना, ठीक है, 5 रुपए, 3 रुपए, ठीक है। नाउ यहाँ पर मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ, इफ आई यूज मिल्क इट विल कॉस्ट मी एडिशनल 1 रुपीज, ओके, या फिर ये मुझे कॉस्ट करेगा सपोज 3 रुपए पर लीटर से दूध मिलता है, सॉरी 30 रुपीज पर लीटर से दूध मिलता है, और मिल्क पाउडर है मुझे आज 25 रुपए की। बाकी सब शुगर वगैरह सब कंटेंट का प्राइस छोड़ दो, क्योंकि वो सब कॉमन है, वो तो चेंज नहीं होने वाला। हेलो, उसका प्राइस जो भी है उसको वैसे ही रखेंगे। अभी हम कॉम्बिनेशन हमारा जो देख रहे हैं, ठीक है, सिर्फ इम्पैक्ट वाला चीज देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं B1 × R1 लूंगा मेरा प्रोडक्शन वर्जन, तो मेरा कॉस्ट क्या जाएगा दोस्तों? 30 × 5, राइट? मेरा B1 यानी ये राउटिंग इंटू R1 यानी 5, बराबर है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट टीम?
Yes. Yes. Yeah. सबको समझ में आ रहा है? तो मेरा क्या जा रहा है? Beautiful. Yes. एक चीज मैन्युफैक्चरिंग, अभी चाय का कीमत इतना नहीं जाएगा, अभी एक पूरा आधा लीटर पैकेट नहीं लगेगा, तो इसको क्या करते हैं, हम करते हैं इसको 3 रुपए कर देते हैं, ठीक है, तो फिर थोड़ा ठीक लगेगा। तो ये जाएगा 30 मिनट तो फिर so what we'll do, we'll make this multiply by 5, ओके। so मेरा 15 रुपए की चाय हो गई, ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर मैं ये कॉम्बिनेशन यूज करता हूँ बॉम वन और राउटिंग वन, तो मुझे चाय पड़ेगी 15 रुपए की, ठीक है। इफ आई गो एंड यूज B1, ओके, इफ आई यूज B1 इंटू ये वाला इलेक्ट्रिक स्टोव से बोल रहा हूँ, तो ये चाय मुझे कितने की पड़ती है? 9 रुपए की, ओके, Yeah. समझ आ रहा है? इफ आई गो अगेन एंड यूज B2, ठीक है, ये मेरा 2.5 होना चाहिए, लेट मी मेक इट 2.5 है, 2.5 2.5 रुपए, ठीक है। सो इफ आई गो ओवर हियर एंड इफ आई यूज B2 इंटू R1 2.5 मल्टीप्लाई बाय 5, से 12.5 रुपए की पड़ रही है। एंड इफ आई गो एंड यूज 2.5 इंटू B2 यानी ये अल्टरनेट बॉम्ब इंटू अल्टरनेट राउटिंग 2, तो ये 7.5 रुपए की पड़ रही है। नाउ टेल मी, ये यूज करके आपको क्या पता चलता है? अगर मैं ये बॉम्ब और ये राउटिंग कॉम्बिनेशन करके प्रोडक्ट बनाता हूँ, तो मुझे कौन सा प्रोडक्ट बनाना सस्ता पड़ रहा है? आर गेटिंग माय पॉइंट? Yes. Yes. प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर, आपको ये कॉम्बिनेशन से ये फाइनल पता चल रहा है कि अरे हाँ, अगर मैं ये रॉ मटेरियल का कॉम्बिनेशन यूज करता हूँ, तो मेरा मटेरियल का कॉस्ट इतना है और मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट इतना है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी क्या? सेटअप टाइम, मशीन टाइम, जो राउटिंग से आ रही है आपको वो कॉस्ट, और बिल ऑफ मटेरियल से आपको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मिल रही है। तो आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो जा रहा है एक टी के लिए 15 रुपए जा रहा है, ये राउटिंग से बहुत ज्यादा महंगी है, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग करना आपके लिए मतलब बहुत ज्यादा महंगी है, थोड़ा बहुत उसके बाद ये ज्यादा महंगी जा रही है आपको, ठीक है। तो दिस इज लिटिल बिट ओल्ड एंड दिस इज फाइन, ओके, आप इसके साथ जा सकते हो, बट ये कॉम्बिनेशन जो लास्ट है ये सबसे बेस्ट है, ठीक है, बराबर है? Yes. बट अभी क्या है, लोग क्या बोलते हैं, नहीं यार मुझे प्रॉपर मिल्क वाली चाय चाहिए, ठीक है। और कुछ लोग बोलते हैं, आजकल मार्केट में आप देखते हो ना, चूल्हे के ऊपर की चाय, फिर अलग अलग टाइप की चाय होती है, तो पीपल पे फॉर दैट, बट उसका अल्टरनेट एक कॉस्ट है। अगर एक ही दुकान के अंदर इतने सब सेटअप्स है उसके पास अवेलेबल, वो इलेक्ट्रिकल ये भी यूज करके दे सकता है आपको, स्टोव के ऊपर दे सकता है, गैस के ऊपर देता है, या फिर आपको कोयले में डाल के देता है, या फिर वो कूल्हे में डाल के देता है अलग से मिट्टी के बर्तन में, तो देयर आर फ्लेवर्स, ओके। तो उसके हिसाब से चाहे कितने रुपए की बेचनी चाहिए उसको भी समझ में आ रहा है इससे, समझ में आया आपको? So as a manufacturer, you should understand, though there are different product, okay, different alternate material we are going to use, but which is the best? अगर कोई बोल रहा है मुझे मिल्क वाली चाय पसंद है, ठीक है, if I say I would like to have only tea with a milk, then you should always use electrical stove. इलेक्ट्रिकल स्टोव उसको सबसे ज्यादा सस्ता पड़ रहा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ये प्रोडक्शन वर्जन 2 वाला जो है ये दे देगा हमेशा, ठीक है। क्लियर है सबको? Yes. एप्लीकेशन समझ में है आपको? Yes. सब अंडरस्टैंड करते हैं एप्लीकेशन क्या है। अगर ये आपके दिमाग में बैठ गया यार, प्रोडक्शन वर्जन का मतलब ये है, अभी देखो, वेन एवर प्रोडक्शन वर्जन इज यूज इन इंडस्ट्री, उसका इस्तेमाल सिर्फ होता है कॉस्टिंग के लिए, मेजर पर्पज इज कॉस्टिंग। तो जब कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसका कॉस्ट निकालना पड़ता है आपको। अभी आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है हमेशा वो क्या होनी चाहिए, आपको मालूम है सबसे महंगी कौन सी है हमारी, ये वाली कॉम्बिनेशन PV01 प्रोडक्शन वर्जन 1। तो अगर आप इसको हमेशा पकड़ के आप कैलकुलेशन करोगे पूरा, तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा बेस्ट, मतलब ऐसा लेवल मिलेगा जिसके ऊपर आप प्रॉफिट ऐड करके जाओगे तो आपको हमेशा प्रॉफिट ही मिलेगा, ठीक है। अगर आपने ये कॉम्बिनेशन यूज करके अगर हमने कॉस्टिंग किया मटेरियल का, प्रोडक्ट का, आप बोलेगे 7.5 रुपये मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, तो मैं बेचता हूँ 10 रुपये में, मेरा 2.5 रुपये का मुनाफा है, ठीक है। तो वो बोले मुझे 2.5 रुपीज का, मैं 10 रुपये में बेच रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे उसको 2.5 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 10 रुपये बेचने गया है तो क्या होगा उसको, -2.5 का ये होगा, लॉस होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बेस्ट प्राइस उसको कौन सी लेनी चाहिए वो देखो। अभी अगर उसने बोला नहीं मैं 10 रुपये में चाय बेचूंगा, हाँ, तो यहाँ पे 1 रुपया प्रॉफिट कर रहा है, और यहाँ पे भी 10 रुपये की बेचेगा तो उसको क्या होगा, 2.5 रुपीज का
₹5 का लॉस होगा। ओके, समझ में आ रहा है? yes, हाँ, अगर उसने उसका सेल बोला यार मेरा 7.5 रुपये मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रहा है एक चाय बनाने का, तो मैं 10 रुपये में बेचता हूँ। ठीक है, ओके, सो दिस इज लॉस, दिस इज द प्रॉफिट और लॉस, पी एफ प्लस लॉस। तो उससे अच्छा क्या है, व्हाट इज बेटर? सो अगर उसने क्या किया, उसने बोला यार मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 15 रुपये है, ठीक है, ये पकड़ के चल रहे, तो अभी देखो क्या होगा। तो यहाँ पर 15 रुपए के और उसने बेची चाय 15 रुपए में, या फिर 16 रुपए में, या फिर थोड़ा बहुत मान लो कि इसको ये 15 रुपए की जगह पे मान लो इसको अमाउंट को हम मान लेते हैं थोड़ा, इसको ठीक है, चाय बेचता है वो 20 रुपए की यहाँ पे, ठीक है। तो अगर 20 रुपए, ये 15 रुपए मैन्युफैक्चर पकड़ के वो यहाँ पे चाय बेचने लगा 20 रुपए की एक चाय, तो इसको प्रॉफिट कितना होगा, यहाँ पे 5 रुपए का प्रॉफिट होगा, यहाँ पे उसको प्रॉफिट होगा 20 - 11 रुपए का प्रॉफिट होगा, यहाँ पे उसको होगा 7.5 रुपए का प्रॉफिट होगा, और यहाँ पे उसको प्रॉफिट होगा 7.5 और 7.5 15 और 22 12.5 रुपए का प्रॉफिट होगा, राइट? हेलो, गेटिंग माई पॉइंट? Yes. वो ये जो फाइनेंस के लोग हैं उनको प्रोडक्शन वर्जन यूज करना पड़ता है कॉस्टिंग के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्शन वर्जन इज टू यूज फॉर कॉस्टिंग पर्पज। जब भी आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द प्रोडक्शन वर्जन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत जेन्युइनली सब लोग पूछते हैं व्हाट इज द प्रोडक्शन वर्जन। द अल्टीमेट आंसर people used to give that production version is combination of a BOM and routing. That is okay, but why? So production version is a combination of BOM and routing which is ultimately used for the costing purpose. ठीक है, ultimate use is costing purpose. Second is capacity planning, then scheduling. ठीक है, शेड्यूलिंग और कैपेसिटी प्लानिंग क्यों है भाई? देखो हमारा ये जो राउटिंग है, राउटिंग में हमने देखा था राउटिंग का यूज क्या होता है, टाइमिंग्स निकालने के लिए। तो टाइम के हिसाब से आपको पता चलता है, अभी यहाँ पे आप टाइम भी डाल सकते हैं। अगर मैंने इलेक्ट्रिकल स्टोव पे किया तो मेरा काम 2 मिनट में खत्म होता है, एक कप का चाय 2 मिनट में उबल के तैयार होता है, लेकिन गैस में किया तो उसको 3 मिनट लगता है। तो आपको पता चलेगा अगर मुझे 10 लीटर चाय करनी है, 1 लीटर चाय के लिए मुझे 3 मिनट लगते हैं, 1 लीटर चाय के लिए यहाँ पे गैस स्टोव पे 2 मिनट लगते हैं। तो मेरा कैपेसिटी कौन सा ज्यादा अच्छा है? तो इलेक्ट्रिकल स्टोव का है। तो इलेक्ट्रिकल स्टोव आपको अल्टीमेटली आपको कम टाइम लग रहा है इसलिए कम पैसा लग रहा है, गैस को आपको ज्यादा खर्चा आ रहा है और ज्यादा ये हो रहा है, टाइम लग रहा है। ठीक है, सो इससे कैपेसिटी प्लानिंग भी हो सकता है। सो प्रोडक्शन वर्जन इज यूज फॉर योर कैपेसिटी प्लानिंग, ओके। स्केड्यूलिंग, फिर टाइम में आ गया तो फिर आपका ऑर्डर स्टार्ट डेट ऑर्डर एंड डेट वो भी वहां से निकलेगा। लेकिन अल्टीमेट अल्टीमेट एम इतना ही है कि वी शुड नो व्हाट इज द बेस्ट प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ओके। एंड फॉर दैट पर्पज इट इज ऑलवेज प्रेफर टू हैव प्रोडक्शन वर्जन विच इज गिविंग यू द लेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और उसके हिसाब मैक्सिमम जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देता है उसके ऊपर पकड़ के कैलकुलेशन किया जाता है हमेशा। अगर आपके पास एक प्रोडक्ट बनाने के 3 अलग तरीके 3 अलग मशीन से, तो उसमें से सबसे महंगी प्रोसेस कौन सी है उसको पकड़ते हैं हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। समझ में आ रहा है आपको? मैंने आपको एक yes, चाय वाले का एग्जांपल दिया, ठीक है। चाय वाला, आप अगर आप चाय बेचोगे तो आप यही देखोगे मुझे सबसे महंगा चाय कौन सा है, हाँ तो यार मैं 15 रुपए में चाय बेचूंगा विच इज जेन्यून। लोगों ने हाँ 15 रुपए की चाय ठीक है, कॉमन मार्केट में 15-20 रुपए की चाय मिलती है एक कप आजकल, तो वो हमारा कैलकुलेशन परफेक्ट बैठ रहा है। तो आप उसके पकड़ के चलेंगे। कोई बोले अब धीरे धीरे आप क्या करेंगे, गैस की जगह पे आप स्टोव यूज करोगे, इलेक्ट्रिकल स्टोव। अब देखो रे यार इलेक्ट्रिक स्टोव पे ज्यादा काम हो रहा है, 2-3 इलेक्ट्रिक स्टोव रख दे, फटाफट फटाफट गर्म कर दे उसको, सस्ते में पड़ रहा है तो वो वाला बेचोगे। लोगों को क्या फर्क पड़ता है, मोस्टली पीपल चाय चाहिए, चाय चाहिए, 99% लोग तो ऐसे चाहिए। सो agenda is that to understand what is the importance is cost, and calculation of cost depends upon your production version selection। और प्रोडक्शन वर्जन सिलेक्शन कहने क्या है, बॉम एंड राउटिंग का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, थियोरेटिकली क्लियर है सबको अभी एग्जांपल वाइज व्हाट इज बॉम? Yes. yes. लेट्स गो टू